Assalamu alaikum dear students, how are you? I am here with your new chapter A Man Who Was a Hospital. This is chapter number 6 और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि आपने इसकी रीडिंग करके रखनी है. So I hope that you had done with your reading. There is a slide with the title of your chapter in front of you, and that is A Man Who Was a Hospital. I'll give you some explanation of difficult words with their meanings, and then we will do with text. I'll open your textbook in front of my screen, and you are supposed to open your books on your screens or whatever. If you have hard copies of your books, just open your books. I'll read and I'll explain the text with you guys. Difficult words with meanings are here. Impelled means driven force. Virulent, poisonous. Ailment, disease. Indolently, lazily. Flawed, walking. Slight, insult. Invidious reservation, offensive reservation, जिसे कहते हैं ना तकल्लुफी किया. ठीक है कि ये चैप्टर में जब वर्ड्स आएंगे वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. Grasping, selfish, malignant, serious, and scourge, afflict. There are a lot of other words in the text which needs some explanation and meanings, and I'll explain I'll explain these words when we will read the text. Okay. Now please take out your books. Open your books. This is I think this is page number 20 or 21. I don't know hard copy पे क्या है, आप इसको check कर लें. और मेरे पास ये page number 20 है. And this is chapter number 6, A Man Who Was a Hospital. Now I will read the chapter and I'll explain the text. Okay. It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. So this is a humorous and funny proceeding. ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसमें राइटर को ऐसा लगता है कि वो जैसे जैसे किसी भी डिजीज़ के सिम्टम्स पढ़ता है ना तो उसको लगता है कि मेरे अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं. और ऐसे करते करते जब वो एक डिक्शनरी पढ़ना शुरू करता है, मेडिकल डिक्शनरी, जो कि A to Z तमाम जो डिजीज़ हैं उन पर वो बनी होती है, तो उसको ये लगता है कि उसके अंदर सारी की सारी डिजीज़ हैं. अभी क्या होता है कि वो एक सर्कुलर उसके हाथ में आता है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, लीवर जो डिजीज़ है ना उसके सिम्टम्स होते हैं, तो उसको ये शक पड़ता है कि जी मेरे अंदर तो ये सारी सिम्टम्स हैं. It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. So virulent form means dangerous form, extreme form में. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensation that I have ever felt. अब वो कहते हैं मैंने ये डायग्नोज किस तरह से किया, मुझे कैसे पता चला कि डायग्नोज तशखीस यानी मर्ज की ना, तो वो कहते हैं मैंने अपने आप में इसको ऐसे डायग्नोज कर लिया, तशखीस कर लिया, क्योंकि जो सिम्टम्स थे जो इसके अंदर बताए गए थे वो तो मुझे हमेशा से फील होते थे. तो वो समझ रहा है कि वो अपना डॉक्टर खुद है और उसने बिल्कुल ठीक तशखीस कर लिया है. और स्टूडेंट्स होता ऐसे ही है, हमारे घरों में भी, हम लोग खुद भी, हम किसी भी डिजीज़ के बारे में पढ़े ना तो साइकोलॉजिकली हमें ऐसा फील होता है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद ना वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जी हाँ ये तो प्रॉब्लम हमारे साथ भी है. अच्छा, आई रिमेंबर्ड गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच हे फीवर. अब वो ब्रिटिश म्यूजियम में गया और उसने ट्रीटमेंट किसका ढूंढना था, हे फीवर का, ठीक है, उसको हल्की सी ये बीमारी थी. आई फैंसी इट वॉज. I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking moment I idly turned the leaves. मतलब वो उसने उसको देखा और उसके बाद ना सफ़े खोलने शुरू कर दिए, जैसे हम टाइम हो तो किसी किताब के सफ़े पलटना शुरू कर देते हैं. And began
to indolently study diseases. Indolently means free time, leisure time है उसके पास, जैसे बिल्कुल आप फारिग हैं तो आप जो है ना वो पेजेस टर्न करना शुरू कर देते हैं. I forget which was the first distemper I plunged into, some fearful, devastating scourge I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly go it. अब वो क्या करता है कि वो ना ये सारी जो बीमारियां या जो भी डिजीज़ हैं ना डिक्शनरी में, उनके ना प्री मॉनिटरी सिम्टम्स यानी कि जो उनके क्या कहते हैं इब्तदाई अलामात जिसको कहते हैं ना, वो पढ़ना शुरू कर देता है. तो वो जैसे जैसे पढ़ता जाता है ना तो उसको लगता है कि उसके अंदर तो सारी बीमारियों के ना सिम्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं. I sat for a while, frozen with horror. So here the element of humor is being created by the writer very successfully. कि जब हमें पता लगता है कि वो ये बीमारियां हमारे अंदर हैं तो क्या होता है कि हम जैसे हम बिल्कुल खौफजदा हो जाते हैं, तो वो भी एकदम से खौफ से जम जाते हैं. And then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever. अब hay fever के बाद उसने next क्या देखा? Typhoid fever. Read the symptoms. Discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. कि मुझे तो पता ही नहीं था कब से मुझे टाइफाइड भी हुआ पड़ा है. Wondered what else I had got. अब वो हैरान है कि और मुझे क्या क्या है. Turned up Saint Vitus dance. Found as I expected that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically read up again and learned that I was sickening for it and that the acute stage would commence in about another fortnight. fortnight कहते हैं और 15 दिन में. acute stage कहते हैं बहुत सख्त इलामात वाली जो स्टेज है ना, ठीक है, जिसे शदीद इलामात कहते हैं. तो वो कहता है कि मैंने क्या किया कि इसको मैंने मज़ीद, मैं इस बात पर हैरान हुआ कि और मुझे क्या क्या कुछ है. तो उसने नई एक बीमारी पढ़ना शुरू कर दी, दैट इज सेंट वाइटस डांस, और उसे ये पता चला कि मुझे ये भी है, बल्कि ये तो ये है. और उसके बाद उसने क्या किया, उसने अल्फ़ाबेटिकली जो है ना, जैसे डिक्शनरी होती है ना आम हमारी जो इंग्लिश की, वो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज्ड होती है. इसी तरह से कोई भी डिक्शनरी है किसी भी प्रोफेशन की ना, तो वो अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज्ड होती है. तो उसने क्या किया, फ्रॉम ए टू जी सारी की सारी डिजीज़ को पढ़ना शुरू कर दिया, राइट. और जब वो अल्फ़ाबेटिकली उसने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसको बहुत सी बीमारियां जो हैं वो लग चुकी हैं और वो मज़ीद अगले 15 दिनों में एक्यूट स्टेज पर जाने वाली हैं. अच्छा, अब वो कौन कौन सी हैं? ब्राइट्स डिजीज आई वॉज रिलीव टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म एंड सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. कहता है diphtheria तो शायद मैं लेकर ही पैदा हुआ हूँ ना. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. अब कहता है जहाँ तक मैंने बीमारियां पढ़ ली थी उनमें से सिर्फ एक मुझे नहीं थी, और वो क्या थी? वो थी जी housemaid knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? अब उसे एकदम दुख लगा कि इतनी सारी बीमारियां थी, सारी की सारी तो मेरे अंदर थी, अब ये हाउसमेड नी क्यों नहीं है आखिर. सो अगेन you can feel the atmosphere, atmosphere of this chapter is humorous. कि एक बीमारी रहती है वो क्यों नहीं है. वाई दिस इनवीडियस रिजर्वेशन, ये तकल्लुफ क्यों. ये मैंने आपको उधर मीनिंग्स में भी बताया हुआ है ना कि मुझे ऑफेंस किया इसने, बल्कि मुझे गुस्सा आया इस रिजर्वेशन पे, ठीक है, कि ये क्यों नहीं है, मुझे ये भी होनी चाहिए थी जब सारी हैं तो. आफ्टर अ वाइल हाउएवर लेस ग्रास्पिंग फीलिंग प्रीवेल्ड, आई रिफ्लेक्टेड दैट आई हैड एवरी अदर नॉन मैलडी in the formology, and I grew less selfish and determined to do without housemaid's knee. वो कहते हैं अच्छा चलो, मैंने फिर ये सोचा कि चलो मैं housemaid knee के बगैर ही गुजारा कर लेता हूँ अगर ये एक नहीं है तो. Gout in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it, and zymosis. This is the last disease in the dictionary. Z से शुरू हो रही है. I had evidently been suffering with from boyhood. यानी लड़कपन से मुझे ये भी थी. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with
और वो कहता है कि ज़ाइमोसिस के बाद अब कोई बीमारी थी ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसके बाद रह क्या जाता है। आई सेट एंड पॉन्डर्ड। अब जनाब उसने डिक्शनरी बंद कर दी, वो बैठा और वो सोचने लगा कि अब करना क्या है। I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. What an acquisition it should be to a class. Students would have no need to walk the hospitals if they had me. I was a hospital in myself. All they need to do would be to walk around me and after that take their diploma. So very interesting and humorous once again. वो कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ये जब प्रैक्टिस करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, जब ये तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ पेशेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनका इलाज करते हैं, तब जाके इनको डिप्लोमा मिलता है। तो इनको तो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इनको करना क्या है कि बस मेरे पास आना है, मेरे पे रिसर्च करनी है और जनाब इनको डिप्लोमा मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो अपने अंदर खुद एक हॉस्पिटल हूँ। देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। अब उसको हैरत इस चीज़ की परेशानी है कि मैं कितना अरसा और जी सकूंगा। आई ट्राइड टू एग्जामिन माई सेल्फ, आई फेल्ट माई पल्स, आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल। सो वंस अगेन इट्स फनी, इतनी सारी बीमारियों के बाद जाहिर है एक बंदा कहता है मैं जी कैसे रहा हूँ। तो उसने अपनी पल्स देखी तो उसको पहले अपनी पल्स ही नहीं मिली। देन ऑल ऑफ सडन इट सीम टू स्टार्ट ऑफ। फिर वो कहते हैं अचानक ये शुरू हो गई। आई पुल्ड आउट माई वॉच एंड टाइम्ड इट, जैसे हम नब्स जो है वो अपनी मैयर करते हैं ना समटाइम्स। I made it 147 to the minute. I tried to feel my heart. I could not feel my heart. It had stopped beating. Obviously, जब आप ऐसे इस किस्म के वहम में पड़ जाते हैं तो एक दफ़ा दिल तो धड़कना बंद हो ही जाता है ना। उसको भी अपने दिल की धड़कन ना मिली कितनी देर। बहरहाल ये उसका वहम था। I had since been induced to come to the opinion that it must have been there all the time and must have been beating, but I cannot account for it. I patted myself all over my front from what I call my waist up to my head, and I won a bit round each side and a little way up the back, but I could not feel or hear anything. I tried to look at my tongue. I stuck it out as far as ever I would go, and I shut one eye and tried to examine it with the other. अक्सर जब डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोज ऐसे ही करते हैं ना, पहले पल्स देखते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जुबान कहते हैं निकालो, जुबान का कलर वगैरह वो देखते हैं। तो ये अपनी जुबान खुद ही जनाब देखने की कोशिश में है। आई कुड ओनली सी द टिप and the only thing that I could gain from that was to feel more certain than before that I had scarlet fever. I had walked into that reading room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit wreck. वो कहता है मैं इस रूम में यानी लाइब्रेरी में, वो आपको याद है ना वो लाइब्रेरी में गया हुआ है, लाइब्रेरी में एक अच्छा और खुशबाश इंसान जो है वो बन के दाखिल हुआ था और मैं रेंगते हुए कीड़े की तरह बाहर निकला हूँ। ज़ाहिर इतने वहम लेकर आया है वहाँ से। I went to my medical man. He is an old chum of mine and feels my pulse and looks at my tongue and talks about the weather. All for nothing. When I fancy I'm ill, so I thought I would do him a good turn by going to him. Now, what a doctor wants, I said, is practice. He shall have me. अब वो कहता है मुझे अपने मेडिकल मैन मतलब डॉक्टर के पास, फिजिसिस्ट के पास जाना, सॉरी फिजिशियन के पास जाना चाहिए। तो वो कहता है उसे और क्या चाहिए, उसे प्रैक्टिस ही तो चाहिए। और मुझे अगर ये 100 बीमारियां हैं तो वो 100 पेशेंट्स की बजाय एक पेशेंट ही देख लेगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं स्किप करूंगी। अब यहाँ पर आए जब उनका आपस में वो एक डायलॉग होता है उसे वो अब मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये जाहिर है मुझे 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फिर क्या होता है, वो उसके पास जाता है डॉक्टर के पास, उसे कहता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मुझे कोई बीमारी भी नहीं है सिवाय हाउस मेड नहीं है, साफ सी बात है, बस बाकी सारी बीमारियां मुझे हैं। वो उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और उसे कहता है जाओ ये ड्रगिस्ट के पास जाओ और ये दवाई ले लो। और जब वो जाता है उधर ड्रगिस्ट या केमिस्ट के पास तो वो उसको कहते हैं कि भाई ये मेरे पास नहीं है। ये देखिए पेज नंबर 22 का मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। आई एम अ केमिस्ट, इफ़ आई वर कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइन I might be able to oblige you. Being only a chemist hampers me. कि मैं तो सिर्फ केमिस्ट हूँ, मेरे पास ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ये सब मेरे पास नहीं है। और वो लिखा क्या होता है, I read the prescription, जो कि उसने अभी पढ़ा। It ran, यानी इसमें कुछ यूँ लिखा था, 1 pound
beef steak every 6 hours, 10-mile walk every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. So this is the last and the least thing, the most important thing. डॉक्टर ने उसे कहा कि जिन चीज़ों को तुम समझ नहीं सकते ना, उनसे अपना दिमाग ख़राब ना करो, वो अपने जहन में ना भरो. I followed the directions with the happy result, speaking for myself that my life was preserved and is still going on. जबकि वो लाइब्रेरी में बैठा था, उसे लगा था कि वो अभी गया क्योंकि उसे सारी की सारी बीमारियां हैं, ठीक है. लेकिन अब जब उसने डॉक्टर के मशवरे पर अमल किया तो वो कह रहा है कि मैं अभी भी हैप्पी और हेल्दी लाइफ गुजार रहा हूँ. सो दिस इज़ अ लेसन फॉर अस एज वेल. एक ह्यूमरस वे में उसने एक लेसन दिया है कि हम फालतू वहम ना करें और अपने आप को उन चीज़ों में ना उलझाएं जिनको हम समझ नहीं सकते. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स और वट एवर एल्स विच वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मैं आपको वो इंशाल्लाह करवाऊंगी. और इस चैप्टर को अब आपने अच्छी तरह से सुनना है. मैंने पूरा टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया है आपको, और अपना ख्याल रखना है आपने. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. किस लिए? किस लिए? कंप्यूटर पे रोज की तरह